Against No, conviction? Lordship, this is not against the conviction. I am the petitioner facing trial in a criminal case registered under section 498A, 23506 and 34 of IPC, my lord. I am the husband of the prosecutrix. I have filed an audio clip before the learned trial court during cross-examination of the prosecutrix. She has denied her voice in that audio clip. Therefore, I have filed an application for recording the voice samples of the prosecutrix, Lordship. The order, that application has been dismissed. The order is at annexure A6, my lord. Page number, relevant para is at page number 25. May I read it for your lordship? The last paragraph. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर लंबित है। अभियुक्तगण द्वारा ऑडियो क्लिप के संबंध में अभियोक्त्री का विस्तृत प्रति परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें अभियोक्त्री द्वारा ऑडियो क्लिप में उसकी आवाज़ होने से इनकार किया है। ऑडियो क्लिप को प्रमाणित करने का भार अभियुक्तगण पर है। अतः बचाव साक्ष्य के प्रकरण पर अभियुक्तगण इस संबंध में विधि अनुसार कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकरण पर अभियोक्त्री के वॉइस सैंपल लिया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। Lordship, I have relied upon a judgment passed by the Honorable Delhi High Court, and I have submitted it before the learned JMFC. Oh, Mr. Praveen. This is exactly the similar case wherein the prosecutrix has denied her voice samples, voice clip, and the voice in that audio clip. And Lordship, the Delhi High Court has decided that the relevant paragraphs may my lord may kindly peruse para number 15 and 17. Last page, my lord. Allowing that application, the Delhi High Court has decided that an accused has an equal right to prove his innocence, my lord. And if the voice samples can prove that, then it may be compulsorily be directed that such voice samples be recorded. My lord, para number 15 and 17. The 17th reads as, in the case in hand, the defense of the petitioner is that he has been falsely implicated in this case and the prosecutrix has accepted having an affair with co-accused. In the tape recorded conversation, he has placed the transcripts of the conversation which took place between him and the prosecutrix. Prosecutrix, when cross-examined on the point of conversation, has denied the fact that the voice recorded in the tape recorder was her voice. Lordship, क्या आपका कहना क्या है? You are facing an offence under section 498A. 498A. To deny the charges of cruelty, my lord, I have filed a voice clip of mine and the prosecutrix. She has denied her voice, therefore I have filed an application under section 45 of Indian Evidence Act. What do you want to prove? Lordship, the मान लीजिए burden, उस वॉइस में उसने क्या मतलब ऐसा क्या कह दिया कि Lordship, there is a that voice that. Sorry to interrupt the court, madam. Sir, I have filed the transcript also. In the transcript, it is category, sir, the allegation against me, the demanding the break. और सर जो कहाँ ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है? सर ट्रांसक्रिप्ट मैंने आज पेश की है। तो अभी रिकॉर्ड पे नहीं, आज ही पेश किया। ये है सर एक्चुअली इन लोगों के बीच में इस बात का डिस्प्यूट हुआ था कि ये जो कंप्लेनेंट है ये 12 आवर्स का 24 आवर्स की मेट चाहती थी और हस्बैंड जो है वो 12 आवर्स का मेट चाहती थी। उसको लेकर के ये घटना से एक दिन जिस दिन का बताती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, उसे 25 तारीख को ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट है, जो इसने खुद भी एडमिट किया है कि हम लोग 25 तारीख को गए थे, सारे परिवार वाले बैठे थे। इस पूरी ट्रांसक्रिप्ट में वो सब चीज़ें हैं सर जो एलिगेशन है। इसके बाद बहुत सारे एलिगेशंस लगे कि मुझसे 10 लाख रुपए मांगे गए, कार मांगी गई, ये सारी चीज़ें, जबकि इसमें बहुत कैटेगरी वो ये एडमिट करती है कि अगर हम लोगों के बीच में आप 24 घंटे का बेड मुझे नहीं दे सकते तो हम रिश्ता खत्म कर दें। इसकी हमने एफएसएल जांच करवाई है, एफएसएल जांच करवा करके उसकी एफएसएल का सर्टिफिकेट लगाया है। तो सर जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो यही है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था वो केवल एक मैट को लेकर के था और उसके बाद ये सारे एलिगेशंस लगे। मैंने इनकी पूरा विस्तृत परीक्षण किया है कि उस 8 महीने के दौरान ये लोग कितनी शादियों में हुए, कहाँ घूमे, सारी चीज़ें हुई, डिस्प्यूट इस बात का हुआ। इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। हमने सेक्शन 9 लगाया, इसने उसमें भी यही कहा कि मैं जाना नहीं चाहती, ना मैं इंदौर रहना चाहती हूँ, मुझे एक मेट चाहिए है
तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन को भी जब हमने पेश किया था तब भी कोर्ट में ही हुआ, और देन आफ्टर वो सारे मैटर्स लग गए। तो जो ये क्लिपिंग है इसमें इसकी मदर है, फादर है, इसकी आंटी है, मेरे मदर फादर हैं और प्रेजेंट एप्लीकेंट है, सारी वाइज है, और सारा पूरा ट्रांसक्रिप्ट हमने पेश किया है। इसमें आप सर यहाँ से शुरू होता है सर, पेरा 6-7वीं लाइन देखिए सर, मुझे घर में सुविधा चाहिए, मुझे घर में सुविधा चाहिए। ये एग्जिबिट D3 है सर, कोर्ट में मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी पेश की है। मुझे घर में हाउस मैनेजर चाहिए। देखिए मैं नौकरी नहीं करती, मैं बिजनेस करती हूँ। मैं उस दिन वेट नहीं करूंगी कि जिस दिन मेरी तनख्वाह 50,000 हो जाएगी तो मैं उस दिन 10,000 कमा कर रखूंगी। व्यापार करती हूँ, एक दुकान डालते हो, वहाँ भी आप पूंजी इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आपको उसका रिटर्न मिलता है। मैंने एक ट्रायल पीरियड सोचा था, अपने लिए 11 महीने फुल टाइम मेड रख करके मैंने दोनों हाथों से पैसे कमाने की कोशिश करूंगी। मेरे घर में कोई इंसान आए, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप मेरे घर पे आए थे, 9:30 बजे आप आए थे, मैं आई थी, प्रियंक नौकरी के लिए आया था, घर में कोई नहीं होता, सारा सामान बिखरा होता, ऐसे में भैया नहीं आती तो कैसे सामना कर पाऊंगा सर। इसी टॉपिक पे ये चलता रहा और आखिरी तक यही। तो मान लीजिए कि ये प्रूव भी हो गया, जी सर, ये वॉइस सैंपल, जी सर। तो उससे केस में क्या सर केस क्रूरलिटी के एलिगेशन, सर क्रूअल्टी का जो उसने ये तो खाली लगाया नहीं होगा कि मैट प्रोवाइड नहीं किया नहीं इसलिए। सर, ये एलिगेशन नहीं, मैंने तो उनसे उसका स्टेटमेंट फाइल किया आपने? सर मैं स्टेटमेंट फाइल कर देता हूँ सर। स्टेटमेंट फाइल करें, मैं खाली statement- इतना कौन होगा? लक्ष्य मेड बस की डिमांड सर will not be allegation only. हाँ नहीं Let us assume that ये voice sample is correct, लक्ष्य but this itself is not. हाँ, तो सर जो If there is other evidence, सर जो डेट ऑफ इंसिडेंट बताया गया है उस डेट ऑफ इंसिडेंट का ही एक वॉइस सैंपल है तो भाई ये तो ऐसा लगता है क्या दोनों एजुकेटेड दिख रहे हैं। सर। दोनों पढ़े लिखे हैं, ये एक फिल्म राइटर है, जो कंप्लेनेंट है एक फिल्म राइटर है, ये लड़का एक इंजीनियर है। दोनों के बीच में केवल इसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद फिर ईगो प्रॉब्लम से बहुत सारे एलिगेशंस लगे। कोई अदर एलिगेशंस होंगे, खाली मेड का कौन होगा भाई? सर एफआईआर भी मेड 1.5 की साल बाद प्रॉब्लम, हुई। एफआईआर भी 1.5 साल बाद। तो मैं स्टेटमेंट पेश कर देता हर हूं हस्बैंड वाइफ के बीच में मेड की प्रॉब्लम है। सर। क्या करें, हर घर में एवरीबडी नीड्स मेड मिले तो सर दैट इज द होल। खाली इतना नहीं होगा, सर अदरवाइज नहीं सर, इसके बाद जो एक साल आप फाइल करिए। अगर जी खाली इतना ही एलिगेशन है जी सर। तब तो क्रूअलिटी का केस ही नहीं बनता है। नहीं सर, एलिगेशन तो इसके बाद दूसरे बने हैं। जो घटना हुई है तो वो इसको हम आपके अलाउ भी कर देंगे तो उससे केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हमारा केवल वॉइस सैंपल के लिए सर आप, मैं स्टेटमेंट फाइल कर देता हूं, अगर आप स्टेटमेंट के लिखिए। उसमें देखेंगे तो आप श्री जी गौरव श्रीवास्तव for the applicant Sri Rahul Solanki, GA for the state, counsel for the applicant prays for time to file copy of the statement of the prosecutrix recorded in the court. List कब चाहिए?